السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے راہ غیر، جو کہ تحریر ہے مریم رحیم کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ ہی کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اب تک کی ایپیسوڈز آپ کو کیسی لگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 14۔ وہ دونوں اس وقت کراچی کے مشہور بک سٹال کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چاروں گرد کتابوں کے مداحوں کا ہجوم تھا۔ وہ ان دونوں سے یکسر فراموش اپنی اپنی دنیا میں یعنی کتاب میں مگن تھے۔ فجر کے چہرے پر کچھ اچھے تاثرات نہ تھے، لگتا تھا کہ آئرہ اسے زبردستی کھینچ لائی ہے۔ فجر نے بھورے رنگ کا فراک زیب تن کیا ہوا تھا، جبکہ آئرہ سیاہ رنگ کی کرتی میں تھی۔ دونوں نے دوپٹے کندھے پر ڈال رکھے تھے اور بال بندھے ہوئے تھے۔ کیا ضرورت تھی مجھے یہاں لانے کی؟ فجر غصہ ہوئی۔ آئرہ رکی اور پھر کمر پر ہاتھ دھرے گھومنے لگی۔ جو تم نے میرا نقصان کیا ہے نا، یہ اسی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے لائی ہوں میڈم۔ فجر کچھ پل نہیں بولی تھی، پھر اسے ناراضگی دکھاتے کتابیں دیکھنے لگی۔ آئرہ اسے فراموش کیے آگے بڑھ گئی تھی، کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ صفحے پلٹا رہی تھی کہ جب اچانک سے نظر اٹھی اور پھر اٹھی ہی رہی۔ یقین کرنے میں دشواری ہوئی تھی۔ حاشر اس کے سامنے ڈھیلی سفید شرٹ پر بھوری پینٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھرائے، ہاتھ میں گھڑی پہنے کتاب میں مشغول تھا۔ یہ میری خام خیالی ہے۔ حاشر سر تو اس وقت آفس میں ہوں گے، وہ کیوں یہاں آنے لگے؟ ایک تو آئرہ مجھے ساتھ لا کر خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اف! انگلی جھٹکاتے ہوئے نظروں کا رخ اس جانب کیا تھا۔ حاشر کو خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ کتاب سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جیسے ہی فجر پر نظر پڑی، ایک پل کو اسے اس حسین اتفاق پر یقین ہی نہ آیا۔ فجر اور یہاں؟ کیا یہ اس کا سراب تو نہیں؟ اب تو ہر جگہ ہی وہ نظر آنے لگی تھی۔ اسے اپنی نظروں پر بھروسہ ہی نہ ہوا۔ کچھ فیصلہ کیا، پھر کتاب اپنی جگہ رکھتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھتے سوچنے لگی، یہ تو واقعی حاشر سر ہے، یہ یہاں کیا کر رہے؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب 3 انچ کے فاصلے پر کھڑے حاشر نے سلام کیا تھا۔ السلام علیکم، آپ یہاں؟ فجر نے اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، میں آئرہ کے ساتھ آئی تھی، مجھے یہاں لا کر خود پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ حاشر نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ یہاں آ کر بور ہو رہی ہیں؟ کیا کتابیں نہیں پڑھتی؟ حاشر کتاب اٹھائے وقت گردانی کرنے لگا۔ فجر کی نظر کتاب پر پڑی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بس میں زیادہ پڑھتی نہیں، اس لیے چپ چاپ کھڑی تھی۔ حاشر نے وہ کتاب رکھ کر دوسری اٹھا لی تھی۔ کوئی خاص وجہ؟ فجر مسکرائی تھی۔ وجہ تو کوئی خاص نہیں، بس شوق نہیں ہے۔ میری دوست مجھے زبردستی دیتی ہے اور وہ بھی مشکل سے پڑھتی ہوں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ کتابیں کسے نہیں پسند؟ ہمارا بس چلے تو دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں۔ فجر اس کی بات پر لبوں پر ہاتھ رکھ کے مدم سا ہنسی تھی۔ حاشر کو اپنا دل اس ہنسی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اچھا وہ سب چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی دوست کس طرح کی کتابیں دیتی ہیں آپ کو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو فجر کچھ پل سوچنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر جب نظر پڑتی تھی تو ساری سوچیں مفلوج ہو کر رہ جاتی تھی۔ آئرہ زیادہ تر تو رومانٹک ہی دیتی، اسی لیے میں کبھی کبھی نہیں پڑھتی۔ حاشر نے سر ہلایا۔ تو چلیں پھر آج میں آپ کو اپنی پسند کی کتابیں دیتا ہوں، آپ انہیں پڑھ کر دیکھیے گا۔ اپنی بات کہتے ہی کتابوں کے ڈھیر سے اپنی پسندیدہ کتاب اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ فجر نے بغیر دیر کیے وہ تھامی اور آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ پڑھنے میں منہمک تھی جب حاشر بولا، میرا پسندیدہ جنر کرائم تھرلر ہے، شاید آپ کو بور کرے مگر ایک بات ہے، یہ مزے کی ہوتی۔ حاشر اپنے لیے دوسری کتاب چھاننے لگا۔ فجر نے کتاب سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ لگ تو اچھی رہی ہے ویسے۔ حاشر مسکرایا اور تعظیم انداز میں سر جھکا دیا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ حاشر کے ذہن میں سوال کنندہ تو پوچھ بیٹھا۔ فجر نے کتاب بند کی اور سینے سے لگائی۔ جی کہیں، آپ کو رومانس پڑھنا کیوں نہیں پسند؟ وہ ڈر رہا تھا کہ اس گھسے پٹے سوال پر فجر برا نہ مان جائے۔ رومانس کی جگہ جو غلط مواد ہوتا ہے مجھے وہ نہیں پسند۔ عجیب سے تاثر سجائے چہرے پر وہ بولی تھی۔ ان الفاظ سے جو گند ہمارے دماغ میں بس جاتا وہ نہیں پسند۔ اپنی بات کہی اور پھر دوبارہ یکسوئی سے کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ حاشر اس کی بات پر خوش ہوا تھا۔ صحیح کہا، لیکن پھر بھی آج کل لوگ اسی مواد کو دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ فجر اس کی بات پر افسردہ ہوئی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کو اسے جتنا دور کرنا چاہیں وہ اس کے اتنا قریب ہوں گے۔ یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے، ان کو پڑھنے والے لوگ ان سب کے عادی ہو جاتے ہیں، چاہ کر بھی ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر سب کچھ ان کے دماغ میں کسی بیماری کی طرح جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے۔ فجر خود کو دوبارہ ان لمحات میں محسوس کرنے لگی۔ وہی تکلیف دہ دن، وہی ڈرگز پانے کے لیے خود کو نقصان پہنچانا۔ وہ بھی تو کافی عرصہ نشے کی عادت میں مبتلا رہی تھی۔ کانوں میں شور پڑا تو وہ حال میں داخل ہوئی۔ حاشر نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے۔
ہم دعا ہی کر سکتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے لیے۔ حاشر نے سر جھٹکا اور گویا پھر آپ کو یہ کتاب کیسی لگی؟ ابرو سے کتاب کی طرف اشارہ کیا تو فجر نے ایک نظر کتاب کو دیکھا، پھر اسے بہت دلچسپ۔ حاشر سر جھکائے ہنسا تھا۔ فجر کو اس کی ہنسی بھلی لگی تو اس نے بے اختیار اسے برقرار رکھنے کی دعا کی۔ میں جانتا تھا آپ کو پسند آئے گی۔ ان دونوں کو اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں آ چلتے ہیں جہاں پر آئرہ کھڑی تھی۔ یہ میڈم میرے کہنے پر تو کتاب پڑھتی نہیں، اور اب حاشر نے دے دی ہے تو کب سے پڑھی جا رہی، رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بڑبڑاتے موبائل فرش سے نکالا تو اور کیمرے کا فوکس ان پر رکھا۔ وہ اس حسین لمحے کو اپنے کیمرے میں قید رکھنا چاہتی تھی۔ کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں تو کتاب پڑھتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور حاشر مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مسکرانے سے گال کا گڑا واضح ہوا۔ آئرہ نے یہ حسین منظر کیمرے میں قید کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ واہ بھائی، میرے لاکھ کہنے پر تم نے کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور یہاں تو کھڑے کھڑے ہی پڑھنے لگ گئی۔ فجر نے غصے سے گھوڑا تھا۔ حاشر خاموشی سے کھڑا رہا۔ اب کیا چلنے کا ارادہ نہیں؟ لبوں پر میٹھی مسکان سجائے آنکھیں پٹپٹاتے آئرہ نے کہا تھا۔ فجر نے کتاب رکھی اور الوداع نظروں سے حاشر کی طرف دیکھتے بولی، تھینک یو حاشر سر۔ حاشر نے ابروچ کا پوچھا، سر کیا ہم دوست نہیں؟ فجر سر پٹائی، جی وہ تو ٹھیک ہے مگر۔ حاشر نے ہاتھ ہوا میں بلند کی، کچھ اگر مگر نہیں، آفس کے باہر آپ مجھے صرف حاشر کہیں، مسکرا کر جواب دیا۔ فجر کچھ دیر اسے دیکھے گئی۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ جب حاشر نے کتاب اٹھا کر اس کے سامنے کی۔ فجر کو سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ حاشر نے اسے سوچوں میں ڈوبتا دیکھا تو بول اٹھا، یہ کتاب لیتی جائیں، ویسے بھی آپ کو پسند آئی، بری اور شہد آنکھوں کا تبادلہ ہو۔ لیکن فجر منع کرنے لگی تھی جب حاشر نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے بولنے سے روکا تھا۔ کچھ لیکن یا اگر نہیں، یہ رکھیں اور پڑھیں، پھر بے شک آپ مجھے دے سکتی ہیں۔ کتاب کو نظر دیکھا اور پھر لے لی تھی۔ حاشر اب کی بار کھل کر مسکرائے تو فجر بھی مسکرا کر سر ہلاتے چلی گئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا، پھر اپنے آپ مسکراتے کتابوں کی طرف متوجہ ہوا۔ باز قدم قدم چل کر اس دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے جس کے اس پار ان کی بیٹی تھی۔ بغیر دستک کے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ فوکسی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر پلٹی وہ غصہ ہوئی۔ آپ پھر آ گئے؟ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو یہاں آنے سے، آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آتی کیا؟ ڈریسنگ ٹیبل پر جو بھی موجود تھا فوکسی نے سب گرا دیا اور اب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ پرفیومز کی بوتل ٹوٹنے سے کمرے میں خوشبو نے اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ ملی جلی خوشبوؤں سے ماحول عجیب سا ہو رہا تھا۔ فوکسی نے ایک ٹوٹا ہوا کانچ اٹھایا اور ہاتھ ان کی جانب ملحق کیا۔ خبردار جو ایک قدم بھی اندر بڑھانے کی کوشش کی ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آگے بڑھ کر باس نے جھانکا تو غصے سے لال ہو رہی تھی۔ تم آخر کب تک مجھ سے بدظن رہو گی؟ میں نے جو کیا اس میں تمہاری بھلائی تھی۔ اسے کندھوں سے تھاما تو وہ چیختی پیچھے، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، آپ وہ 4 سالوں پہلے کھو چکے ہیں۔ لبوں پر تل مسکراہٹ رنگی اور دوبارہ مخاطب ہوئی، اور کیا کہا؟ میری بھلائی چاہتے تھے آپ؟ اگر یہ آپ کی بھلائی ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہوتا کہ آپ بھلائی کرتے ہی نہ۔ اپنا رخ واپس آئینے کی طرف کیا۔ باس کو کسی غلط چیز کا احساس جاگا تھا کیونکہ وہ کانچ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد باس صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھے اور اسے دیکھنے لگے۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے خفا ہو سکتا ہے تم میری بات توجہ سے نہ سنو، مگر پھر بھی آج میں تمہیں اپنی کہانی سنانا چاہوں گا۔ فوکسی نے ایک پل کو آئینے میں نظر آتے ان کے عکس کو دیکھا۔ ہم بہت غریب تھے، نہ جانے کتنے دن ہمیں کچھ بھی کھانے کو نہ ملتا۔ میرے ماں باپ صبر اور شکر والے نفس تھے، وہ ہر حال میں صبر کر ہی لیتے تھے۔ دونوں غربت کی وجہ سے ہمیشہ بیمار رہتے تھے، لیکن میں ان کی بیماری سہ نہیں پاتا۔ مجھے یہ غربت بالکل پسند نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہیں سے بھی بس اتنا پیسہ آئے کہ جس سے میں اپنے ماں باپ کا علاج کروا سکوں، لیکن زندگی نے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں دی، جس بات کا مجھے آج تک غصہ ہے۔ میرے ماں باپ یوں ہی سسک کر مر گئے۔ ان دونوں کے بعد میں سڑک پر آ گیا، اور تب میرے ساتھ وہ ہوا جس کے زخم آج بھی میرے جسم پر ہیں۔ میں انہیں دیکھتا ہوں تو سب یاد آنے لگتا ہے۔ اسی طرح کئی دن اور کئی رات میں فٹ پاتھ پر سویا تھا۔ دنوں کی گنتی مجھے بھول گئی تھی۔ بھوک پیاس کی کمی کی وجہ سے میرا جسم کمزور تر ہوتا جا رہا تھا، مانو ڈھانچے کی شکل اختیار کر لی ہو۔ پھر ایک دن مجھے غفور دادا ملے۔ فوکسی نے اپنا رخ ان کی جانب کیا اور پشت آئینے سے ٹکا کر سینے پر ہاتھ باندھے، چہرے پر سخت تاثر تھا، آنکھوں میں غصہ۔ اس کے ہاتھ میں کانچ اب بھی تھا جسے وہ دبائے ہوئے تھی۔ اس کا زور اتنا تھا کہ گاڑھا خون رس کر زمین پر بہنے لگا۔ باس کی نظریں اس خون پر جمی رہی، لیکن انہیں اندر کہیں سکون محسوس ہوا کہ ان کی بات سنی جا رہی۔ غفور دادا مجھے اپنے گھر لائے، پھر مجھ سے سوال پوچھے میں کہاں سے ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ میں بس یکٹک انہیں دیکھتا رہا۔ باس کے سامنے ایک منظر ابھرا تو خود کو اسی منظر میں ڈوبتا محسوس کیا۔ منظر میں سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس آدمی ان کے سامنے دوتانو انداز میں بیٹھا تھا۔ چہرے پر موجود سرمئی داڑھی انہیں باروک شخصیت ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ تم کہاں سے ہو بچے؟ بچے نے ان کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا جن میں زمانے بھر کی نرمی تھی، یا شاید صرف اس کے لیے پیدا کی گئی، شاید اصل میں ماجرا کچھ اور۔
مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، بچے نے سرشاری سے کہا۔ کیا تمہیں اپنا نام نہیں معلوم پیارے بچے؟ بچے نے سر اٹھایا تھا۔ مجھے اپنا نام پتا تھا مگر اب بھول گیا ہوں۔ غفور دادا ہنسنے لگے۔ تو کیا میں تمہیں نیا نام دے سکتا ہوں؟ بچے نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی۔ کچھ پل گزرے تو غفور دادا دوبارہ ہم کلام ہوئے۔ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنے دن سے فٹ پاتھ پر کیا کر رہے تھے؟ میں روز رات کو یہاں سے گزرتا تھا اور تمہیں دیکھتا تھا۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو سما گئے۔ میں اپنے گھر کا راستہ بھول چکا ہوں، اس لیے فٹ پاتھ پر تھا۔ غفور دادا نے بچے کے ہاتھ تھامے تھے۔ کیا تمہارے ماں باپ؟ بچے نے بیچ میں بات کاٹی۔ وہ مر گئے، آواز میں نمی شامل تھی۔ غفور دادا کو افسوس نے آ گھیرا۔ چلو آج سے تم میرے پاس ہی رہو گے اور آج سے میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں۔ بچے کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کس طرح رد عمل ظاہر کرے، اس لیے اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ منظر ہوا میں تحلیل ہوا۔ وہ ہال میں لوٹے تو وہ خود کو فاکسی کے شاندار کمرے میں پایا جو اس پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ نظریں فاکسی کی طرف کی جو اسی طرح کھڑی تھی، آنکھیں غصے سے لال ہوئیں جیسے ابھی سامنے بیٹھے شخص کا قتل کر دیں۔ میں نے ان کے کچھ سوالات کے جواب دیے، پھر انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ کئی روز بعد وہ مجھے اپنے اڈے پر لے کر گئے اور پہلی بار میں نے آنکھوں کے سامنے لڑکی کی کٹی ہوئی لاش دیکھی تھی۔ فاکسی کو ایک دم اپنا پہلا دن یاد آ گیا۔ سارے دکھ سارے غم جیسے دوبارہ جاگ اٹھے تھے۔ دل میں درد سا جاگا جس کا اثر آنکھوں میں اجاگر ہوا تھا۔ جیسے تمہاری حالت ہوئی تھی ویسے ہی میری بھی ہوئی تھی۔ میں کئی دن تک بستر پر پڑا رہا۔ ایک دن غفور دادا آئے اور مجھ سے کہنے لگے، بچے تم بہت بہادر ہو، تم تو دنیا پر راج کر سکتے ہو، ہر پریشانی سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہو۔ آج ایک معمولی سے منظر سے ہار گئے۔ میں چونک کر دیکھنے لگا کہ وہ اس منظر کو کیسے معمولی کہہ سکتے تھے جو بالکل معمولی نہیں تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، تمہیں اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا، خود کو مضبوط اور توانا بنانا ہوگا، کیونکہ میرے بعد سب تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ میں کچھ نہ سمجھا، لیکن جیسے ہی دن گزرتے گئے اور میں روز ان کے ساتھ اڈے پر جاتا رہا تو ان باتوں نے میرے اوپر اثر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے وجود کے اندر ایک تبدیلی محسوس کی، طاقت کی تبدیلی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا اس کا کاروبار مجھے مزہ دینے لگا، کیونکہ میں اچھا خاصا نام کما چکا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ یقیناً غفور دادا کی وجہ سے۔ غفور دادا کچھ بیمار رہنے لگے تھے اور اسی طرح ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ میں ان کی وجہ سے بہت دکھی تھا کیونکہ میں نے باپ جیسا انسان کھو دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، کئی راتیں کاٹی، تب سراج میرے ساتھ شامل ہوا۔ وہ میرا دوست تھا، میں نے اسے بھی اس راہ پر لگا دیا۔ کاروبار بلندی کو چھونے لگا، تبھی اچانک سے ارباز علوی آدم کا۔ خیر پھر اسے بھی بہت سارے پاپڑ بیلنے کے بعد میں نے راستے سے ہٹا دیا۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کو رکے۔ اس دنیا میں نے اپنا نام بہت مشکل سے کمایا ہے، وہ بھی صرف غفور دادا کی وجہ سے۔ وہ نہ ہوتے تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ فاکسی نے تھک ہار کر کانچ دور پھینکا اور نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھی، آنکھوں سے آنسو کی ریلی نکلی۔ باس اس کے پاس بیٹھے تھے۔ تمہاری خوش قسمتی دیکھو کہ تمہیں سب کچھ بنا بنایا ملا ہے۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تو تب میں یہ سمجھا کہ میرا اس کاروبار کو تم ہی سنبھالو گی۔ میں نے تمہارے تھوڑے بڑے ہونے کا انتظار کیا، پھر جب تم 16 سال کی ہوئی تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وقت آ چکا ہے دنیا پر راج کرنے کا۔ فاکسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس بار اس نے جھٹکنے کی کوشش ہرگز نہیں کی۔ اپنے آپ کو دیکھو اور سوچو، اگر تم یہاں نہ ہوتی تو شاید اس طرح مضبوط نہ ہوتی، بلکہ ان سب عام لڑکیوں کی طرح ہوتی جنہیں آرام سے لوگ مسل کر چلے جاتے ہیں اور چپ چاپ خاموشی کا لبادہ اوڑھے وہ بیٹھی رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میری بیٹی مضبوط ہو، بہادر ملکہ ہو۔ آج تم خود کو آئینے میں دیکھو اور بتاؤ کہ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ فاکسی کی آنکھ سے آنسو نکل کر زمین پر بچھے کارپٹ میں جذب ہوں۔ دنیا نے اور اس کے رہنے والوں نے مجھ پر بہت ستم ڈھائے۔ اب میرا وقت ہے کہ میں تمہاری شکل میں ان سے اپنا بدلہ چکاؤں، کیونکہ تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں جو میرے لیے لڑے۔ فاکسی کے لب پھڑپڑائے، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر باس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ اگر تمہیں اب بھی مجھ پر غصہ ہے اور تم چاہتی ہو کہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، تمہاری زندگی سے بے دخل ہو جاؤں، تو پینٹ کی جیب میں عرصی پستول نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ابھی میرا کام تمام کر دو۔ فاکسی نے کانپتی انگلیوں سے پستول تھامی اور یکٹک دکھنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے اسے کمرے سے باہر پھینکا اور زمین پر بیٹھی زاروں کے تار رونے لگی۔ باس نے اسے کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ مجھے معاف کرنا میری جان، مگر یہ ضروری تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں اس سے دور بھی رکھ سکتا تھا، مگر میں نے ایسا کیا نہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر مڑے اور دروازے سے نکل گئے۔ پیچھے فاکسی کن سوچوں میں گم ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ باس کچھ فاصلے پر رک کر مڑ کر کمرے کے اس پار بیٹھی بیٹی کو دیکھا۔ ان کے لب گہری مسکراہٹ کا پتہ دے رہے تھے۔ تم اتنی جلدی میرے شکنجے میں آ جاؤ گی، میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہو تو تم بھی ایک لڑکی، آخر کار یقین تو کرنا ہی تھا نا۔ باس لاؤنج کی جانب آئے تو وہاں سراج ان کے انتظار میں تھے۔ ہو گئی بات؟ آنکھوں میں جاننے کا جنون تھا۔ باس خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے، پھر ایک جاندار کہکا مار۔ تمہیں معلوم تو ہے سراج، لڑکیاں معصوم ہوتی، انہیں ذرا سا کندھا دو وہ پگھل جاتی۔ میں نے بھی یہی کیا اور دیکھو۔ ہاتھ سے فاکسی کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارے سامنے ہے سب۔ سراج نے ان کی بات پر کہکا لگایا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ نہیں پگھلے گی، مگر خیر جو ہوا اچھا ہوا۔
सूरज पूरे माहौल पर हावी था, लेकिन वो लोगों के लिए राहत बख्श साबित हो रहा था। परिंदे अपनी उड़ान भरते रिज़्क की तलाश में थे। उन्हें अपनी मस्ती में मगन छोड़े ज़मीन पर वाक़ इस घर की तरफ रुजू करते हैं, जिसके दरवाजे पर समी खड़ा था, स्याह शलवार कमीज़ पहने, बाल माथे पर जमाए। आज वो बरसों बाद इस दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसे छोड़े कई अरसा होने को था। आंखों में नमी थी, जिन्हें वो बार-बार छुपा रहा था। किसे यकीनन अपने आप से उसे एक ऐसा गुनाह सरजद हुआ जिसकी कोई सज़ा न थी। वो दस्तक दे चुका था, मगर अभी तक दरवाज़ा किसी ने ना खोला। बचपन से लेकर जवानी तक बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई थीं, जिन्हें याद करना उसके लिए दुश्वार साबित हो रहा था। कदमों की आवाज़ आई तो वो उसके इंतज़ार में खड़ा था। दरवाज़ा खुल चुका था। फजर अपनी जगह ग फजर अपनी जगह खड़ी दंग रह गई थी। उसका भाई 7 साल की मुसाफत के बाद इसी दर पर खड़ा था, जिसे वो गरीब खाना कहकर छोड़ चुका था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब क्यों आए हैं इस गरीब खाने पे? समी मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट में दर्द छुपा था। अपनों को खोने का दर्द। क्या सारे शिकवे यहीं खड़े करोगी? अंदर आने का मौका नहीं दोगी? फजर ऐसे ही खड़ी रही, उसके वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई। अब आप क्यों आना चाहते हैं इस गरीब खाने में? ये तो आपके मयार का नहीं था ना? समी ने सर झुका लिया। उस वक्त मैं बहक गया था। पैसों का लालच था। फजर तल्खी से मुस्कुराई थी। और इस बात का एहसास आपको अब हो रहा है? फजर के लफ्ज़ किसी निश्तर की तरह महसूस होने लगे। दिल में तकलीफ हुई, मगर ये तकलीफ कुछ भी नहीं थी उसके सामने जो इस घर के मकीनों ने सही थी। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद तुम लोगों के हालात ठीक नहीं थे, मगर फिर भी क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकती? फजर बगैर जवाब दिए दरवाजे से हटी। समी कुछ देर खड़ा रहा, फिर अंदर आ गया। चारों तरफ नजरें घुमाई। उसके चेहरे पर जो तासुरात थे फजर ने वो पढ़ लिए थे। अम्मी का इंतकाल हो चुका है, जबकि बाबा घर छोड़कर चले गए। समी को चेहरे पर समी के चेहरे पर हैरानी पैदा हुई। क्या हुआ था अम्मी को? उसकी आंखों में कई ऐसे सवाल थे जिनका वो फजर से जवाब चाहता था। फजर ने एक बार फिर खामोशी को चुना और इसी तरह सवाल रद्द किया जैसे सुना ही ना। आप क्यों आए हैं यहाँ? समी ने उसके लहजे की सख्ती भांप ली थी। सर झुकाए वो फर्श को देखने लगा। मैं माफ़ी मांगने आया। उसने अपने लफ्ज़ वापस दोहराए थे। फजर उसे बगैर तासुर के देखती रही। कोई ज़रूरत नहीं आपकी माफ़ी की। समी ने सर झुका लिया। समी ने झुका सर उठाया और फिर शिकवा कुना नज़रों से उस जान से प्यारी बहन को देखा था। क्यों ज़रूरत नहीं बच्चे? फजर तल्ख से मुस्कुराई। मुझे एक बात बताएं कि क्या आपकी इस माफ़ी से सब ठीक हो सकता है? क्या मेरी माँ जिंदा हो सकती है? क्या वो सब होने से रोक सकता है जो मेरे साथ हुआ? बोलें, जवाब दें। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं खुशी खुशी माफ़ कर देने को तैयार। समी को महसूस हुआ कि जैसे उसके पास लफ्ज़ों का चुनाव ख़त्म हो गया। उसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। जवाब कोई नहीं बन पा रहा था। फजर ने इस बात में सर हिलाया। आपकी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि आपके पास ये इख्तियार ही नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस तरह जाने से घर दरम बरम हो जाएगा। फजर रुकी लेकिन मुड़ी नहीं। वो फजर की पुष्ट पर ही नजरें गाड़े बोला था। क्या तुम मुझे सुनना नहीं चाहोगी? मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था घर। यकीन करो, जब से घर छोड़ा है तब से हमारे ऊपर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई हैं। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। कई दिन रात हम मारे मारे फिरे। हम फाकों से गुजरे। न जाने कौन कौन सी आफतों ने हमारा दर्द देख लिया था। मैं समझ गया कि ये सब मेरे खुद की वजह से हुआ है। अगर मैं लालच ना दिखाता तो शायद आज हम इस मकाम पर ना खड़े होते। मेरी इस गलती की वजह से न जाने मैंने क्या कुछ गलत कर दिया, जिसका मैं पता भी नहीं जिसका मैं बता भी नहीं सकता। बताना चाहूँ तब भी नहीं। मैं कैसे गुनाह में मुलविस हो चुका हूँ जिससे वापसी अब तभी मुमकिन होगी जब इस दुनिया से रुखसत होऊंगा। इस आवाज़ में नमी झलकी तो फजर मुड़ी। तभी हाथ जोड़े खड़ा था। मुझे माफ़ कर दो। फजर का दिल कुछ मोम हुआ। आंखों से गुस्से का पर्दा चाक हुआ और वहाँ एक नरम एहसास ने छाप पैदा की थी। फजर ने आगे बढ़कर उसके हाथों को थामा। कोई बात नहीं, ये सब होना हमारी किस्मत में लिखा था। समी कुछ देर चुप रहा। फजर उसके सामने खड़ी आंसू पोंछ रही थी। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? फजर ने आंसू भरी आंखों से देखा। जब मैं बाबा को माफ़ कर सकती हूँ, अपने बेटे के कातलों को माफ़ कर सकती हूँ, तो आपको भी कर सकती हूँ। समी ताज्जुब का शिकार हो। बेटे के कातलों को मतलब? तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? फजर ने हाँ में सर हिलाया था। जी, बाबा की वजह से। समी ने नासमझी से देखा। आप अंदर आए, मैं कुछ दिखाती हूँ। उसे कमरे में अंदर आने का कहा और साथ ही वो खुद भी चली गई। कुछ ही मिनट गुजरे कि समी फजर के पलंग पर बैठा और उसके सामने वो बैठी अपनी कहानी सुना रही थी। जो जिंदगी ने उसके साथ सितम ज़रीफ़ी की, सब। उसके हाथ में रामिस की तस्वीर भी थी। जैसे ही समी की नज़र उस पर पड़ी, उसे अपने पैरों से ज़मीन फिसलती महसूस हुई थी। माथे पर पसीना जमा हुआ, पेशानी शिकन आलूद हुई, आंखें फैलकर बड़ी होने लगी। होंठ कपकपाहट का शिकार हुए, हाथों में लर्जिश पैदा हुई। आज उस पर एक भारी हकीकत अयां हुई थी जो अनकरीब उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। जाने अनजाने में उसने जिस मासूम बच्चे का गला काटा था, वो उसी बहन का बेटा निकला था जिस पर वो जान निछावर करता था।
اگر فجر کو پتہ چل جاتا اس کے معصوم بیٹے کا قاتل اس کا سگا بھائی ہے تو فجر شاید اسے ایک بار پھر گھر سے نکال دیتی یا ایسی سزا سناتی کہ جو اس کی موت کا باعث بنتی، مگر نہیں، اللہ نے اس کے گناہوں پر پردہ رکھ دیا تھا۔ فجر اس کی بگڑتی حالت دیکھتے کہنے لگی، کیا ہوا بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ ماتھے پر ننھی بوندیں پیدا، بمشکل سر اس بات میں ہلایا اور تاثرات بحال کیے۔ میں ٹھیک نہیں، اچانک سے طبیعت کچھ بگڑ رہی۔ کیا تم مجھے ٹھنڈا پانی دے سکتی؟ فجر اٹھی اور باورچی خانے سے پانی کا گلاس اٹھا لائی۔ سمی نے ایک ہی سانس میں اسے اندر اتارا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ فجر نے سمی کی بگڑتی طبیعت کو ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی لیکن سمی نے موقع ہی نہیں دیا۔ مجھے جانا ہوگا، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، انشاءاللہ میں دوبارہ ملنے آؤں گا۔ الوداعی لفظ کہے اور چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ فجر سے آخری بار مل رہا تھا۔ جیسے ہی دروازے سے نکلا، ہادی نے فاصلے پر کھڑی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ہوا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میڈم، اب تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ سمی وہ نہیں جو خود کو دکھاتا ہے۔ ضرور ان کے مابین کچھ ایسا تعلق ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ فرنٹ مرر سے فاکسی کو دیکھا۔ وہ بھی جلد معلوم ہو جائے گا۔ گڈ جاب ہادی، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اس امتحان میں پاس ہو جاؤ گے۔ فاکسی کی بات پر وہ ہنسا اور تعظیم سے سر جھکا دیا تھا۔ جب آپ کا بھروسہ ساتھ ہو تو کون گدھا امتحان نہیں جیتے گا؟ فاکسی نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور اسی طرح بیٹھی رہی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے وہ ہادی کے ساتھ مل کر سمی کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ پہلے اس نے یہ کام ہادی کو سونپا تھا، پھر کچھ خیال آیا تو وہ بھی شامل ہو گئی۔ سمی کب آتا، کب جاتا، کیا کھاتا کیا پیتا، سب علم۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی پر بھروسہ کیا تھا جس کا بہت بھاری نقصان وہ اٹھا چکی تھی۔ اب بدلہ لینے کا وقت تھا۔ فاکسی اپنی ہی سوچوں میں گم مسکرا رہی تھی۔ ماسک کی وجہ سے ہادی اس کو نہ دیکھ سکا تھا۔ اگر دیکھ لیتا تو جان جاتا کہ وہ کتنی خطرناک ہے۔ سمی اپنے آفس میں سربراہی کرسی پر براجمان تھا۔ چہرے پر اداسی کی رمق تھی اور آنکھوں کے سامنے ایک منظر بار بار کسی تکلیف دہ یاد کی مانند اجاگر ہو رہا تھا۔ وہ منظر جس میں بچہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور واپس جانے کی التجا کر رہا تھا، لیکن وہ ایک سخت چاند تھا جو اس کی بات پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ کاش وہ اس وقت سمجھ جاتا، کاش اسے اس وقت کسی طرح الہام ہو جاتا تو شاید، اور ہمیشہ کی طرح ساری باتیں اس شاید پر ہی ختم ہو رہی تھی کہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنی بہن سے اس کا واحد سہارا بھی چھین لیا جس کی وجہ سے اس نے جینے کی خواہش کی تھی۔ سر دونوں ہاتھوں میں تھاما اور زاروں کے تار رو دیا تھا۔ آج سے اس کا رونا شروع ہونا تھا کیونکہ اس کی قسمت میں اب رونا ہی لکھا تھا۔ کافی دیر رو لینے کے بعد میز کی نچلی دراز سے کاغذ نکالا، پین ہولڈر سے اٹھایا تھا، پھر جھکتے ہوئے الفاظ اس پر گھسیٹنے لگا۔ پیاری فجر، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگی۔ جب سے تم سے ملا ہوں تب سے بہت خوشی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ اس بات پر کہ تم نے مجھے معاف کر کے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ لیکن آج جو ایک حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی ہے اس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ مجھے اس بات کی واقعی امید نہ تھی۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ آپ کے گناہ ہمیشہ آپ کا پیچھا کرتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ مجھے معاف کر دو فجر، میں ہی تمہارا گناہ گار پچھلے گزشتہ مہینوں میں جو کچھ ہوا اس میں برابر کا شریک رہا۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں کیا کرنے لگا۔ اگر معلوم ہوتا تو شاید نہ کرتا۔ آنکھوں میں پیدا ہونے والے آنسو ہاتھ کے پوچھ سے صاف کیے اور دوبارہ جھکا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سے جتنا چھپنا چاہیں اتنا چھپی رہیں۔ اگر وہ کسی دن کھل کر سامنے آ جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسے ابھی مجھے ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی دل پھٹ جائے گا، درد بڑھ رہا ہے۔ کاش مجھے وہ سب معلوم نہ پڑتا تو اتنی تکلیف محسوس نہ کر رہا ہوتا جتنی اب کر رہا۔ میں خود کو تمہارا بھائی کہلانے کے لائق ہی نہیں رہا۔ تم سمجھ رہی ہوگی کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں۔ تمہاری آسانی کے لیے آج میں ایک اعتراف کرنے لگا ہوں، وہ اعتراف جسے جان کر ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ میں ہی وہ انسان ہوں جس نے تم سے تمہارا واحد سہارا چھینا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد مجھ میں اب تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہمارا سامنا اب کبھی نہ ہو۔ اگر تمہارا دل مجھے معاف کرنے کی اجازت دے تو معاف کر دینا۔ فقط تمہارا بھائی جو تمہیں اب تک جان سے پیارا تھا۔ سیدھا ہوا، کاغذ طے کر کے جیب میں رکھا اور جلد ہی یہ خط ارسال کرنے کا ارادہ کیا۔ آنسو پوچھے تبھی ایک ہستی نے اس کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ سمی نے کسی کی موجودگی محسوس کی تو اس جانب دیکھا، پھر سامنے کھڑے وجود کو دیکھے چونک گیا تھا۔ چہرے پر پھیلی نمی صاف کرنے لگا اور پھر کرسی سے اٹھ کر ادب سے سر جھکائے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے میڈم۔ وہ شاہانہ انداز میں چلتے کمرے میں داخل ہوئی اور کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ بیٹھا تھا۔ نظر سیدھی چمکتے چاقو پر پڑی جو کچھ غلط محسوس ہوا۔ آج اس چمک میں کچھ خاص تھا۔ کیسے ہو سمی؟ چاقو والا ہاتھ شیشے کی میز پر دھرا۔ سمی بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانگی چھائی تھی۔ فاکسی آج خاص سے اس سے خیریت کیوں پوچھ رہی تھی؟ میں ٹھیک ہوں میڈم، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا بھیجتی، میں آ جاتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ سر لبوں پر زبان پھیری۔ فاکسی نے سر سیٹ کی پچ سے لگا لیا اور چاقو کی نوک انگلیوں سے کھرچنے لگی۔ آنکھیں صفاقی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔
कुछ पर्सनल काम था इसीलिए खुद आई हूँ। सोचा कि इसी बहाने तुमसे खैरियत भी पूछ लूँगी। क्या मैंने कुछ गलत किया यहाँ आकर? अपनी निगाहें उसकी तरफ की तो देखा वो चाकू को ही घूरे जा रहा था। ऑक्सी तल्ख हंसी थी। अरे मेरी जान, तुम डर क्यों रहे? बड़ी दिक्कतों से समी ने उसकी तरफ देखा था। उसे इस उसे नजरों से खौफ आया था। कुछ था इनमें जिसे वो जान ना सका। जबरदस्ती मुस्कुराहट होंठों पर सजाई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फॉक्सी को शायद इसकी शक्ल देखकर तरस आ गया। कुर्सी पर सीधी होकर बैठी और आंखों में आंखें डाली। सुनने में आया है कि आजकल तुम बहुत पुराने रिश्ते ताज़ा कर रहे हो। समी उसकी ढकी छुपी बात को समझ नहीं सका। जी क्या मतलब? आंखों में उलझन उदाई थी। वो अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ आई। मतलब तो साफ मेरी आंखों में नजर आ रहा होगा अगर गौर करो तो। समी ने थूक निकला। आपको धोखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रही हैं। अपनी सफाई में लफ्ज अदा कितनी मुश्किलों से करते आज इसे अंदाजा हुआ था। हर किसी की आंख धोखा खा सकती है मगर फॉक्सी की नहीं। वो उसकी कुर्सी के पीछे आ खड़ी हुई। समी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी मौत सर पर मंडलाती महसूस हुई। आपको कोई गलतफहमी हुई है। फॉक्सी ने चाकू उसके गले में चबो दिया। समी ने आंखें बंद किए। खून की एक बूंद गिरकर सफेद कॉलर में जज्ब हो गई और डब्बा छोड़ गई थी। ठीक इसी वक्त समी पर तक हकीकत आश्कार हुई कि आज अभी और इसी वक्त वो मौत के घाट उतरने वाला है। फॉक्सी को कभी गलतफहमी नहीं हो सकती, इसलिए खत्म करो ये नाटक। आंखों में खतरनाक तरी तासुर नजर आया था। समी ने गहरी सांस भरी। आज उसका इख्तिताम होना यकीनी था। हाँ, मैंने अपनी बहन को बचाया था। मैं ना होता तो कोई और बचा लेता क्योंकि उसकी जिंदगी लिखी थी। लेकिन जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैंने उसके वाहिद सहारे को उसे छीन लिया। इसका मुझे अब उम्र भर अफसोस रहेगा। आंसू उसकी आंख से टपका था। वो भी खून की तरह कॉलर में जज्ब हो गया। फॉक्सी के चेहरे पर कई तासुरात पैदा हुए। फिर अचानक चाकू से यके बाद दीगरे वार करती गई जिसकी वजह से खून के छींटे उसके साफ और शफाफ चेहरे पर पड़ने लगे थे। साथ साथ बुड़बुड़ाती रही। तुम्हारी उम्र होगी तभी अफसोस कर पाओगे ना। चेहरे से खून के छींटे साफ किए और अपनी उंगली वह जगह रखी जहां से खून बहकर जमीन पर गिर रहा था। खून से उसकी सफेद शर्ट पर फॉक्सी लिखने लगी। लिखते हुए सीधे हुए और उसके चेहरे को देखा जो अब बेजान हो चुका था। फॉक्सी के साथ जो गद्दारी करेगा इसका अंजाम मौत ही होगा। दरवाजे के पीछे खड़े दीवार से पुष्ट टिकाए हाथी की टांगें एक पल को लर्जी थी। वो दीवार का सहारा लिए खड़ा था क्योंकि इससे एक संगीन गलती हो चुकी थी जिसका वो खमियाजा भुगतना नहीं चाहता था। चेहरे पर मौत का खौफ वाजे हो। उसे मौत अपने सर नाचती नजर आने लगी। उसी वक्त एक मंजर उसकी आंखों में लहराया था। 5 महीने कबल, रामिस के इंतकाल से एक हफ्ता पहले, खुद को अपने कमरे जो फॉक्सी ने उसका ऑफिस बनाया था में महसूस किया। मोबाइल हाथ में थामे वो किसी को कॉल मिला रहा था। एक सेकंड भी ना गुजरा था जब कान में हेलो सुनाई। हादी ने दरवाजे की जानिब देखा और मोबाइल के स्पीकर पर मुट्ठी जमाए हल्की आवाज में बड़बड़ाया। मोहतात रहना क्योंकि कुछ दिन में तुम्हारे किसी अपने की मौत होने वाली है। अपनी बात कहते ही उसने कॉल काटी। वो घबराहट का शिकार हुई। आगे पीछे दोबारा नजरें घुमाई, किसी ने देखा तो नहीं। फिर गहरी सांस भरी और मुस्कुराने लगा। उसे फॉक्सी का राज पता चल चुका था। वो अगले हफ्ते क्या करने वाली थी मालूम हो चुका था। हाल में वापस आए तो कमरे के अंदर से फॉक्सी निकलने ही वाली थी जब वो दूसरी तरफ हुआ। फॉक्सी ने उसे नहीं देखा, शुक्र है। जो मंजर उसने भी देखा था वो फरामोश करने के काबिल नहीं था। पहले उसने सोचा कि वो आराम से फॉक्सी को धक्का दे देगा मगर अब अंदाजा हो रहा था कि पहले उसने सोचा था कि वो आराम से फॉक्सी को धोखा दे देगा मगर अब उसने सोचा था कि ये मुश्किल था। जिंदगी और मौत का खेल क्योंकि वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। आसमान पर उड़ते परिंदे अपने जोबन पर थे। बादल अपनी आगोश में सूरज को छुपाए हुए थे। ऐसे में घने जंगलात के बीच बनी इमारत के अंदर से इस वक्त किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो सब फरामोश के अंदर कदम धरने लगा। ये तो उसके लिए रोज़ का मामूल था, इसीलिए कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। अंदर जाते ही सिराज हमेशा की तरह अपनी मखसूस जगह पर बैठे सिगरेट पीने में मशगूल चेहरे के सामने अखबार किए बैठे थे। उन्हें किसी की आमद महसूस हुई थी। अखबार का सिरा मोड़कर उस जानिब देखा। अपने रखते जिगर को देखते उनके लबों पर मुस्कुराहट ठहरी थी। पास पड़ी ऐश ट्रे में सिगरेट का झटका पास पड़ी ऐश ट्रे में सिगरेट को झटका और सीधे हुए। मौसम के मुनासबत से गर्म हल्के रंग की शर्ट के साथ सफ़ेद पैंट पहने, बाल माथे पर बिखराए वो इन्हें ही देखने लगा था। तुम्हारे चेहरे के तासुरात देखकर लगता है कि कुछ नेक इरादे से नहीं आए। हाथी टांग पर टांग जमाए सोफे पर बैठा और बाप को देखते कुछ ऐसे लफ्ज अदा किए जिनको सुनने की उन्हें चाह कब से हो रही थी। आपकी चहेती ने आज समी का कत्ल कर दिया। सिराज को महसूस हुआ जैसे जिंदगी के सारे गम इन लफ्जों ने मिटा दिए। अच्छा हुआ, बल्कि बहुत अच्छा हुआ। उसने खुद ही हमारे गले का कांटा निकाल फेंका। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना जो हम करने वाले थे वो ना कर सकते।
समी फॉक्सी का वफादार आदमी था। वो कैसे भी करके सब पता लगवा ही देता, फिर हम बुरी तरह फंस जाते। उनके आखिरी लफ्जों में कुछ ऐसा था जिसे देख हादी पल भर को चौंका। मंदिर स्टेशन पर दो मंजर आ ठहरे, जिनमें फॉक्सी समी का कत्ल कर रही थी और दूसरे में वो रामिस के कत्ल की खबर दे रहा था। फिलहाल के लिए उसने ये बात राज रखनी चाहिए। वो होश में आया और सिराज को बावर करवाने वाला लहजा अपना लिया था। बाबा, अब की बार हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, वरना जान भी जा सकती है। सिराज कुछ पल खामोश निगाहों से देखे गया, फिर जोर का कहका लगाया। ये तो इस गड्ढे में कूदने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब क्या हो सकता है? सिराज कहते ही वापस अपने काम में मसरूफ हो गए। जब हादी उठा और चक्कर काटने लगा, नहीं, इतनी आसानी से तो वो हमें नहीं मार सकती। इससे कबल वो कुछ करे, हमें इसके सारे दाव पेच खेलने होंगे। एक ख्याल जहन में आया, फिर उसे लफ्जों में पिरोने लगा। आपने बॉस वाले मामले में कुछ किया? सिराज ने अखबार से नजर उठाई और पुरसोच नजरों से उसे देखे गए। इस पर भी काम चल रहा, मगर हादी ने उनकी आंखों में झांक कर कुछ तलाशना चाहा। मगर क्या? सिराज ने सांस खींची। हमें कुछ अहम सबूत की जरूरत है, जिससे ये मालूम हो जाए कि बॉस ने ही इस लड़की का रेप किया है, वरना क्या पता वो शख्स झूठ बोल रहा। हादी उसकी बात पर हंसा था। आपके सामने भी झूठ बोल देते हैं, वाह। सिराज ने अखबार को झटका देकर तह किया और फिर मुकम्मल तवज्जो उसे दी थी। इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं जिसके सामने लोग झूठ बोलने से कतराने लगे। लोग आसानी से झूठ बोलकर चले जाते हैं। ये हम होते हैं जिन्हें बात की खाल तक पहुंचना होता है। इनकी बात पर माहौल में कुछ तनाव सा महसूस हुआ, जिसे हादी ने झटका था। ठीक है, अगर ऐसी सूरत है तो मेरे पास एक आइडिया है, जिसे सुनकर यकीनन आप खुश होंगे। हादी उनकी बात कहने ही लगा था जब बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दोनों की नज़रों का तबादला। क्या फॉक्सी यहाँ है? पूछने वाली आवाज़ हादी की थी। नहीं, वो दिन में कहाँ आती है। फिक्र मत करो, कोई जानवर ही होगा। तुम अपना आइडिया बताओ। सिराज ने इत्मीनान बख्श जवाब दिया तो आगे के लाए अमल दोहराने लगे, जिसे सुनकर सिराज के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी, एक पतायाब मुस्कुराहट। आयरा अस्पताल में अपने कमरे में बैठी किसी का मुआयना कर रही थी जब उसका मोबाइल बजा था। मसरूफ अंदाज में नाम देखे बगैर मोबाइल उठा लिया। जी, कौन बात कर रहा है? मरीज को कुछ ज़रूरी हिदायत देने लगी। मोहतरम ताबिश अरबाज दिल बात करते हैं। गाड़ी चलाते उसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट। जी कहिए, किस वजह से फ़ोन किया मोहतरम ने? क्या काम है? मरीज चला गया तो सांस भरी। हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए जो आपसे काम पड़ेगा। वो तो हमारी अम्मा ने आपको याद फरमाया, इसीलिए कह दिया। क्यों? उन्होंने क्यों याद किया है? हैरानी से पूछा। अब ये तो उन्हें ही मालूम है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। आयरा ने इस बात में सर हिला दिया। अब पर्स में ज़रूरी सामान रखने लगी। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। ताबिश ने उसकी तरदीद की। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं बाहर निकला हूँ, तुम्हारे सारे काम निपटा लो, फिर ले जाऊँगा। आयरा कुछ पल सोच में पड़ी। उसे कुछ खटका था। ताबिश, सब ठीक है ना? दोनों के माबैन खामोशी रही। हाँ, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, सारे काम खत्म करो, मैं आ रहा हूँ लेने। अपनी बात कहते ही फ़ोन मुनक़ता किया। आयरा कुछ पल ऐसे ही बैठी रही। कुछ ही देर में उसकी कोलीग ने ताबिश के आने की इत्तला दी। वो दोनों साथ साथ थी जब उसकी कोलीग ने ताबिश को देखते सरगोशी नुमा अंदाज अपनाया। यार आयरा, तुम्हारा मंगेतर कितना हैंडसम है। कुछ कदम का फासला होने के बावजूद भी मोबाइल हाथ में पकड़े ताबिश ने अच्छे से बात सुन ली थी। लबों ने मुस्कुराहट को छुआ, गाल सर हुए। आयरा ने उसकी बदलती हालत देखी तो वो इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद था। कहाँ है हैंडसम लड़का? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। चश्मा सर पर जमाते बोली। चश्मा पहन लो, फिर नजर आ जाएगा। ताबिश ने अपने कदम आगे बढ़ाए और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। सादिया दबी दबी सी हंसी थी। आयरा ने उसे घूरा। सुनो, ये कोई मेरा मंगेतर नहीं है। मेरी किस्मत अभी इतनी नहीं फूटी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे आवाज़ में बोला ताकि आसानी से सुन सके, क्योंकि शीशे नीचे चढ़े थे। मैडम, खुद को बाद में खुशकिस्मत जाहिर करना, अभी चलो। ताबिश ने गाड़ी स्टार्ट की। आयरा गाड़ी में बैठी तो सादिया चली गई। गाड़ी सड़क पर आ चुकी थी। ताबिश के लबों पर अब भी मुस्कुराहट विराजमान थी। कहीं से जलने की बू आ रही है ना? आंखें शीशे पर जमी हुई थी, जिनमें खूब शरारत भरी थी। मैं क्यों जलने लगी? बताना पसंद करेंगे? अंदाज तंज लिए हुए था। ताबिश एक आबरू उठाते उसे देखने लगा। तुम्हारी शक्ल पर साफ लिखा हुआ है। आयरा ने घूर कर देखा, लेकिन फिर भूख का एहसास जागा तो फिर पर से बिस्किट निकाले और फिर खाने लगी। क्या हुआ? आज घर वालों ने खाना नहीं दिया जो बिस्किट पर काम चला रही। आयरा शीशे के उस पार देखने लगी। आज मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए नाश्ता किए बगैर ही अस्पताल आ गई। फिर इधर भी मसरूफ रही तो खा नहीं सकी। ताबिश को भी भूख का शिद्दत से एहसास हुआ, क्योंकि उसने भी पूरे दिन से कुछ ना खाया था। ऐसा करते हैं कि कुछ खा लेते हैं पहले, मुझे भी भूख लगने लगी। आयरा बगैर आंखें झपके उसे देखे गई। दिल ही दिल में वो सोचने लगी कि बाहर से वो कितना लाउबाली सा दिखता है, अंदर से वो सबका एहसास करता था। आयरा के दिल में ताबिश की मोहब्बत ने ऊंचा मकाम पा लिया था, जैसे उतारना अब आयरा के बस में नहीं था। ताबिश को उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस हुई तो चेहरा उसकी तरफ किया
اور चुटकी बजाई जिससे वो होश की दुनिया में दाखिल हुई थी और संभल कर दोबारा शीशे के पार देखने लगी। दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। क्या मेरे चेहरे पर कोई लतीफ़ा लिखा है? आयरा हंसी और नफ़ी में सर हिला दिया। रेस्टोरेंट आ चुका था। वो दोनों अब आमने सामने बैठे थे। उनके आसपास काफ़ी लोगों का शोर था। चम्मच चलाने की आवाज़ भरपूर सुनाई दे रही थी, लेकिन इन सबको फरामोश किए वो ऑर्डर लिखवा रहा था। ऑर्डर लिखवा कर फारिग हुआ तो बराह रास्त उससे हम कलाम हुआ। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। एक बात बताओ, तुम सारा दिन मरीजों से घिरी रहती, बोर नहीं होती? आयरा गोया हुई। एक काबिल एक काबिल डॉक्टर वो होता है जो कभी भी अपने प्रोफेशन या उससे रिलेटेड लोगों से बोर नहीं होता। ताबिश का अंदाज ऐसा था जिसे देखकर वो हंसती थी। वैसे शक्ल से तुम लगती तो नहीं काबिल डॉक्टर, मगर तुमने जो कहा है इस पर यकीन कर लेता हूँ। आयरा ने मेज़ पर कोई चीज़ तलाशनी चाही जो उसे मार सके, मगर ऐसा कुछ न मिला। अगर तुम मुझे काबिल डॉक्टर नहीं समझते तो अपनी माँ का इलाज क्यों करवाते, नालायक औलाद। ताबिश ने उसे नालायक कहने पर घूरा, लेकिन फिर संभल कर कहा, वो तो अम्मा तुम पर फिदा हैं, इसीलिए। आयरा उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। ताबिश उसे देखकर दिल में खुद से मुखातिब हुई, और अब अम्मा मुझे भी इस लाइन में खड़ा करना चाहती हैं। अल्लाह, क्या इन्हें बेटे की ज़िंदगी नहीं प्यारी? अपने आखिरी अल्फाज दिल में कहे थे, क्योंकि भरे मजमे में उसके मरने का कोई इरादा नहीं था। इनसे कुछ फासले पर सफ़ा बड़ी हिमाक से प्लेट में सजी स्टिक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। तब उसकी निगाह ताबिश पर गुजरी थी। आंखों में यफलक कई सारे एहसास जागे, आंखों में हकारत ने पनाह ली। उसी वक्त नज़र आयरा पर गई थी, जो उससे कोई बात करने में मशगूल थी। उसे भी हकारत की नज़र से नवाजा, फिर अपना मोबाइल निकालकर स्टिक की स्नैप बनाने लगी। ताबिश की नज़र उस पर पड़ी तो खामोशी इधर फैल गई थी। रेस्टोरेंट में बजते चमचों की आवाज़ भी बंद हो गई। उसे लगा कि सारे दर्द दोबारा जाग उठे हैं। उसके आसपास क्या होने लगा है वो फरामोश कर बैठा था, हत्ता कि उसे ये तक भूल चुका था कि वो यहाँ क्यों बैठा है। आखिर 5 महीने की तवील मुसाफत तय करने के बाद उसे देख रहा था। सफ़ेद रंग की आधी आस्तीनों वाली फ्रॉक और स्ट्रिकिंग शुदा बालों पर स्याह चश्मा जमा हुआ था। बिलाशुबा वो उसे प्यारी लगी, मगर अपनी ना लगी थी। आयरा ने उसे खोया खोया महसूस किया तो उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। एक लम्हा लगा था, बस एक लम्हा, उसे सब समझने में। उसी वक्त उसने ताबिश के आगे चुटकी बजाई। कहाँ गुम हो गए? उसके इस तरह करने पर वो हाल में आया और ना समझी सायरा को देखने लगा। क्या हुआ, सब ठीक है? आंखों में हैरत लिए पूछा। आयरा पुरसोच नज़रों से देखे गई। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ताबिश, तुम उस लड़की को क्यों घूर रहे थे? दोनों हाथ मेज़ पर जमाए उसके जवाब का इंतजार करने लगी। ताबिश ने शिकस्ता दिल लिए उसे देखा था। यही है वो संग दिल। आयरा ने नज़र मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से सफ़ा अभी अभी निकली थी और अपने मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़े खड़ी थी। चेहरे पर करक तासुरात थे। ये प्लास्टिक की गुड़िया? ताबिश घूरने लगा। अच्छा, सॉरी, मजाक था। न जाने क्यों ताबिश के बताने से दिल में टीस सी उभरी थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गहरा घाव दे दिया। अपने दर्द को दिल में छुपाए अब के संभल कर बोली, वैसे देखा गया है इसमें उधार के एटीट्यूड के अलावा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। सही में ये प्लास्टिक की गुड़िया ही। ताबिश का कहका गूंजा, मगर इस कहके में वो जान ना थी जो हुआ करती थी। सफ़ा की नज़र भी उस पर पड़ी और गुस्से से गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई थी। सफ़ा को गए 5 मिनट ही हुए थे। ताबिश मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। तभी उसे देखती आयरा ने दिमाग में उभरते सवाल को ज़ुबान पर लाने का सोचा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये सब कब हुआ तो क्या बताओगे? हो सकता है इससे दिल हल्का हो जाए। ताबिश लम्हे में उसी जगह आ पहुंचा जहां से शुरुआत हुई थी। आयरा ने उसके बदलते तासुरात जांचना चाहे, लेकिन वो सर झटक कर सीधा हुआ। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। उसे महसूस हुआ जैसे वो बताने से गुरेज कर रहा। वो खामोशी से दाखिली दरवाजे की तरफ देखता रहा। चेहरे पर तकलीफ उभरी। उसके दिल ने फैसला किया और वो अमल करने लगा। उस दिन वो बहुत उदास लगी थी। मैं उसके पास गया था। पूछना पूछने लगा तो हमेशा की तरह गुस्सा हो गई। वो इस तरह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उस पर तहकुम आमेज़ लहजा ही जचता था। घर आकर रात को पूछा तो उसने बताया कि अपनी अम्मी की वजह से परेशान थी। इसके बाद से मैं सफ़ा को पसंद करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा पसंद, बल्कि पसंद एक छोटा सा लफ्ज़ है। मैं उससे मोहब्बत करने लगा। अब मुझे लगता है ये एहसास मोहब्बत से बढ़ चुका है। मैं उसे रिहाई चाहता हूँ, मगर मुझ में रिहा होने की अब हिम्मत नहीं रही। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो दोबारा बोला, इस वाक़े को 5 साल का तवील अरसा हो चुका है, मगर फिर भी मुझे महसूस होता जैसे ये सब नया-नया है। आयरा तवज्जो से उसकी आपबीती सुनने लगी। उसे पता ही ना चला कि कब आंसू आँख से लुढ़का और मेज़ पर जब मैं हाथ पर गिरा था। कुछ नमी महसूस हुई तो होश की दुनिया में आई। ऑर्डर आ चुका था। वो दोनों अब दूसरी बातें करने लगे। लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर उनके दिल खाली हो चुके थे किसी गहरे एहसास से जो इनके पूरे वजूद पर हावी हो चुका था। रात की अंधेरी चादर ने हर सू अपने पर फैला लिए थे। बादलों के बीच में हलाल पूरी आबोताब से जगमगा रहा था।
आयरा कॉफ़ी का मग और किताब लिए दिन भर की थकन के बाद अपने कमरे के टेरेस में मौजूद जाली के बने अपने पसंदीदा झूले पर आ बैठी। सारे दिन में उसके लिए सबसे फरद वक्त यही होता था जब वो दिन भर की थकन से चूर होकर एक कॉफ़ी का मग और अपनी पसंदीदा किताब लिए झूले पर बैठती थी। किताब यूं ही अनछुए रखे कॉफ़ी के छोटे छोटे घूंट लेती रही। वो चांद को तकने लगी। चांद को तकते तकते उसका जहन दिन में होने वाली बातों में उलझ गया था। उसकी समात में ताबिश के अल्फाज गूंजे थे। मैं सफ़ा को पसंद करने लगा, बहुत ज़्यादा पसंद, बल्कि पसंद एक छोटा सा लफ्ज़ है। मैं उससे मोहब्बत करने लगा, और इन अल्फाज के साथ ही उसकी आंखों से दो कतरे निकलकर रुखसारों पर बह गए थे। ये बात उसने जिस दिल से सुनी थी बस वही जानती थी। वो ताबिश का दर्द बहुत अच्छे से समझती थी, क्योंकि वो खुद भी तो इन्हीं राहों की मुसाफिर बन गई थी। ताबे से झगड़ते झगड़ते कब वो उसको अपने दिल में जगह दे बैठी थी उसको महसूस ही ना हुआ। वो और ताबिश राह गैर के मुसाफिर थे। इन दोनों की मंजिलें जुदा थी। आयरा की मंजिल ताबिश था और ताबिश की मंजिल सफ़ा, और सफ़ा की मंजिल आह। उसने एक ठंडी सांस खारिज की, अपने आंसू पोंछे और बेख्तियार दिल से दुआ की थी, अल्लाह जी प्लीज़ कि राज कभी उसको पता ना चले। मेरा भरम उसकी नज़रों में कायम रहे। मैं उसे खुद से कतराता हुआ नहीं देख सकती। हमारे बीच में अब जो ताल्लुक है बस वही कायम रहे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उसकी दूरी बर्दाश्त कर सकूं। आंखों में आंसू चमका था। आंख ने उसे बाहर धकेला। आयरा ने उसे बहने दिया था। मैं चाहूँ तो उसे अपना बना सकती, मगर मैं नहीं चाहती वो दो हिस्सों में बटे। वो आज भी सफ़ा से मोहब्बत करता है अल्लाह जी। अगर मैं उसे हासिल कर भी लूँ तो भी हार मेरे ही हिस्से में आएगी, क्योंकि हो सकता है वो मुझसे ऐसी मोहब्बत ना कर सके। एक तरफा मोहब्बत एक सख्त अजाब है जिसे अब आयरा अली ने सारी ज़िंदगी झेलना था। बिलाखिर उसने अपनी अनछुई किताब को उठा लिया। ये किताबें ही तो थीं जो उसको सुकून देती थीं। अगर उसके पास ये ना होती तो शायद उसकी ज़िंदगी खाली होती। और एक बार फिर वो किताब में गुम होकर दुनिया माफ़ी हाथ से दूर हो गई थी। आसमान पर चमकता चांद भी उस लड़की का राज सुनकर बादलों की आगोश में छुप गया। हलाल चांद ने यहाँ भी अपना बसेरा किया हुआ था। वो कभी बादलों की ओट में छुप जाता, कभी अपनी तेज़ रोशनी लिए आसमान पर फिर से फैल जाता। उसे अपनी जगह छोड़े इस कमरे की खुली खिड़की से अंदर झांके तो देखते हैं कि फजर के हाथ में वही किताब थी। वो उसे पढ़ चुकी थी, अब देने की बारी थी। साइड से मोबाइल उठाया और कान से लगाए घंटियां सुनने लगी। घड़ी की जानिब नज़र घुमाई तो वो 12:30 बजा रही थी। उसे ताज्जुब हुआ, उसने टाइम देखे बगैर ही हाशिर को कॉल मिला दी थी। अब उसे गहरी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हाशिर फ़ोन उठा चुका था। अस्सलाम वालेकुम फ़जर, खैरियत? आपने इस वक्त कॉल की? फ़जर ने आंखें ज़ोर से मींचकर खुद को कोसा था। उफ, आखिर क्या सोचते होंगे इसके बारे में। वालेकुम अस्सलाम सर, सब खैरियत है। बस मैं आयरा को कॉल कर रही थी तो गलती से आपको लग गई, सॉरी। उसे जल्दबाजी में जो बोला किया वो बगैर सोचे समझे बोल गई थी। इट्स ओके, मैं वैसे भी जाग रहा था। फजर उठकर खिड़की की जानिब आ गई थी। ओह अच्छा, चलें ठीक है। फ़ोन रखने ही वाली थी जब पीछे से वो बोल उठा, क्या आपने वो किताब पढ़ ली? फजर ने अपने वजूद मोड़कर पलंग पर पड़ी किताब को देखा था। जी पढ़ ली, अब आपको वापस करनी है बस। हाशिर हैरान हूँ। एक मिनट, ये तो मैंने गिफ्ट दी थी आपको। अब हैरान होने की बारी फजर की थी। जी सर, लेकिन क्यों? आपने मुझे कहा था कि इसे समझ ना आए कि वो क्या कहे। वो तो बस ऐसे ही कहा था। दूसरी तरफ से जवाब आ गया। इससे कबल फजर एक और सवाल करती हाशिर ने रोका था। तो फिर क्या सोचा आपने ऑफिस के बारे में? फजर के चेहरे पर लम्हे के 1000वें हिस्से में उदासी छा गई। पिछले दिनों से हाशिर के कहने पर उसने खूब सोचा, मगर उसे कोई हल मिलकर ही नहीं दे रहा था। मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसके लिए करूँ अब। दुनिया में मेरा है ही कौन? जो था वो चला गया। गले में आंसू का फंदा फंसा था। आशिर कुछ पल खामोश रहा। उसके लफ्ज़ों में छुपी तकलीफ को वह पहचान गया था। आप खुद के लिए ज्वाइन करें। आशिर के मुख्तसर जवाब पर वो ऐसे ही रही। उसे कोई जवाब न बन पाया था। देखें, जब तक आप हिम्मत ना करेंगी कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा और हालात से लड़ना होगा। फजर की आंख से आंसू टपका था। मैं थक गई हूँ अब, और खुद के अंदर हिम्मत पैदा करूँ भी तो किस लिए? मेरे पास एक बेटा था जिसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलती थी कुछ करने की, और अब वो नहीं रहा तो। उसने सवाल दागा। बेशक आपका बेटा नहीं रहा, लेकिन और भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो दोबारा आपको खड़ा होता ज़िंदगी में मुस्कुराता देखना चाहते हैं। फजर उसकी दो मायनी बातें ना समझी। मसलन कौन लोग? जैसे आपकी दोस्त आयरा, ताबिश और मैं भी। आंखें बंद किए वो सब बोल दिया था जो बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। फजर ने चांद को देखा जो अभी तक चमक रहा था। आपको इन लोगों के लिए वापस मंजर पर आना होगा जो आपसे मुखलिस। चांद से नजरें हटाई और सर तस्लीम खम किया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे कुछ वक्त मजीद दरकार। आशिर के लब मुस्कुराहट में ढले। एक मनोबोझ दिल से सिरक उठा था। आप चाहें जितना मर्जी वक्त ले लें, लेकिन एक बात याद रखें, आपने वापस ज़रूर आना है। उसकी बात सुनी और फ़ोन काट दिया। एक नज़र रामिस की मुस्कुराती तस्वीर को देखा, फिर पलंग पर लेट गई। न जाने क्यों, मगर उसे महसूस हुआ कि दिल अब मुकम्मल सकून में है।
ताबिश स्याह यूनिफॉर्म पहने पुलिस स्टेशन में मौजूद था और काफ़ी देर से खोई हुई फाइल ढूंढ रहा था, जो न जाने ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल गए। गुस्से की शिद्दत से माथे पर शिकन बेदार हुई। कहाँ चली गई यार, अभी कल ही तो देखी थी मैंने। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे पहली चीज़ों में अपनी मतलूबा चीज़ तलाशने लगा। ये पुरानी रद्दी थी जिस पर काफ़ी गर्द जमी थी। कपड़े से सारी मिट्टी साफ किए इसी वक्त हाथ में मौजूद फाइल पर एक जाने पहचाने नाम ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। हैरानगी भरा तासुर लिए वो उठा और कुर्सी पर बैठा। स्याह रंग के कवर पर सफ़ेद रोशनाई से अरबाज इल्वी मर्डर केस लिखा था। उसे बेख्तियार वो रात याद आई थी जब फॉक्सी ने उसे कॉल की थी। तब उसने भी अरबाज इल्वी के बारे में ही कुछ कहा था जो इस फाइल में दर्ज था। लबों पर हाथ हाथ की मुट्ठी जमाए सोचने लगा। दिमाग वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे काफ़ी बड़ा झटका इस वक्त लगा था। सोचों को झटका और तवज्जो फाइल पर की। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। माथे की रगें फड़कती। गुस्सा हदों को छूने लगा। मुट्ठी जोर से मेज़ पर मारी जिसकी वजह से मेज़ पर पड़ी चीज़ें ज़मीन बोस हो गई थी। आज तक जो अरबाज इल्वी के अहले खाना को कहानी सुनाई गई वो सरासर गलत थी। असल कहानी तो इस फाइल में मौजूद थी। इसमें लिखा था अरबाज इल्वी एक मशहूर और मारूफ शख्सियत से उलझ बैठे थे। इनका कोई कामयाब ट्रक का कारोबार चल रहा था जिसे अरबाज इल्वी ने काफ़ी महारत से मार गिराया था। कामयाबी उनके कदम चूमने ही वाली थी जब अचानक उनके पास रॉन्ग फ़ोन आया था। किसी ने उन्हें अपने पास बहाने से बुलाया और फिर इसके बाद ज़िंदगी बदल गई क्योंकि इसके बाद अरबाज इल्वी कभी घर ना आए थे। फाइल मेज़ पर पटके खड़ा होकर गहरी सांसें भरी, पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और कॉल करके हसन को आने को कहा। कुछ ही देर में वो उसके सामने था। ताबिश अब के संभल चुका था मगर उसके अंदर अब भी जंग छिड़ी थी। अरबाज इल्वी मर्डर केस दोबारा खुलवाओ और इससे जुड़ी जो भी हकीकत है वो मेरे सामने लाओ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। हसन ने एक नज़र उसे देखा फिर इस फाइल को। मगर सर ये तो काफ़ी पुराना है। अब तक तो ताबिश ने मेज़ पर पड़ा होल्डर उठाया और ज़ोर से ज़मीन पर फेंका। मुझे कुछ नहीं मालूम, जो करना पड़े करो, मगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे इस केस की असल हकीकत चाहिए। सुना तुमने? हसन शिराजी सिर्फ 1 हफ्ता। हाथ की एक उंगली निकालकर बाकी को मुट्ठी में बंद किए खड़ा था। हसन धूप निकलते इस बात में सर हिलाते चला गया। जिंदगी में पहली बार उसने ताबिश अलवी को शदीद गुस्से में देखा था। हसन के जाने के कुछ ही देर बाद ताबिश आरामदेह अंदाज में कुर्सी पर बैठा मगर उसके तासुरात में अब भी गुस्सा झलक रहा था। मैं ताबिश अरबाज इल्वी आज ये अहद करता हूँ कि अपने बाप के कातलों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो गंवा दूंगा। रात का वक्त है। लोग गहरी नींद के आगोश में थे। सिर्फ कमरे में मौजूद 2 नफूस के अलावा। मंजर है कि फॉक्सी के कमरे का जहाँ वो आरामदेह हालत में मौजूद थी। मास्क से चेहरा पाक था, नाइट सूट पहने, बाल जोड़े की शक्ल में बांधे जिससे कुछ बाल निकलकर गालों को छू रहे थे। वो इस वक्त अपने चाकू से खेलने में मगन थी जैसे इसे ज़रूरी काम हो ही ना। इसे बिल्कुल अलग थलग बॉस साथ शलवार कमीज़ पहने, बाल अच्छे से बनाए, सोफे पर टांग जमाए उसे घूरने में मगन थे। तुमने बहुत जल्दबाजी दिखाई है समी को मारने में। तुम्हें कुछ तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए था। उनकी आवाज़ में काट थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें अपनी बेटी का ये काम ज़रा पसंद ना आया। आपने किया था जो मैं करूं? अंदाज तमस्खुर भरा था। बॉस के जिस्म में खून सरायत करने लगा। मेरा मामला मेरा वाला मामला कुछ अलग था। उसे छोड़ दो फिलहाल। तुम्हारी बात की जा रही है। तुम ये जो करती फिर रही हो ना, पता है कितना नुकसान होगा कारोबार को। कुछ कारोबार के तौर अतवार भी सीखो जो कि तुम बिल्कुल भूल चुकी। माहौल में कुछ हायल हुआ जिसकी वजह से तवील मुद्दत के लिए खामोशी रही। फॉक्सी चाकू लिए अपनी जगह से उठी थी, उनके सामने आई और चाकू की नोक उनके सामने की। चाकू की चमक देखकर बॉस की आंखें चंदिया गई थी। मेरी बात गौर से सुने आप। आंखों में खून लिए उन्हें देखने लगी। फॉक्सी हमेशा अपनी मर्जी करती आई है, अब भी करेगी। वो लहजे में बहुत कुछ बावर करवा गई थी। बॉस ने पहले चाकू को देखा, माथे पर पसीने की बूंद आ ठहरी। जहन में वो दिन आ ठहरा जब उन्होंने खुद अपनी बेटी को बंदूक थमाकर मारने को कहा था। जहन को झटका फिर हाथ से उसे परे किया। तुम जो कुछ भी आज होना मेरी ही बदौलत हो। मैं चाहूँ तो एक झटके में तुम्हें ज़मीन बोस कर सकता हूँ। फॉक्सी के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। वो इन्हें यही छोड़ कमरे से बाहर जा रही थी तभी बॉस का मोबाइल बज उठा। बॉस ने स्क्रीन की जानिब नज़र की तो SHO सा, सागर ना चमक रहा था। पहले फॉक्सी की तरफ देखा फिर फ़ोन उठाते कान से लगा लिया। क्या हाल है SHO साहब? फरमाएं कैसे आदत आई हमारी? लहजे में बशाशत इख्तियार करते कहने लगे, हालांकि दिल में अलग ही तूफान मचा था। फॉक्सी हाथ में पकड़े चाकू को अपनी नज़रों के सामने करते चलने लगी थी। ज़रूरी इतला देनी थी मैंने। सोचा कि इससे कबल कोई और दे क्यों ना मैं ही दे दूँ। सागर का अंदाज इन पुलिस वालों जैसा था जो अमूमन रिश्वतखोरों का होता है।
कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा जब भी फ़ोन आता है कुछ गलत ही सुनाते। फ़ॉक्सी साबका जगह पर बैठी और चाकू आंखों के सामने की उसकी चमकती धार को बगौर देखने लगी। मगर जब उसकी चमक में खून की बूंदें होती तो दिल अलग ही लय पर झूमने लगता। एएसपी ताबिश अली। सागर के लिए सागर के ये नाम लेने से बॉस थोड़ा बहुत तो जान गए कि खबर किससे मंसूब। क्या किया उस ताबिश अलवी ने? फॉक्सी ने चाकू से नजर हटाकर उन्हें देखा। उसने अरबाज जबरी मर्डर केस रीओपन कर दिया है। बॉस हैरानगी से अपनी जगह से उठे और कमरे में चक्कर काटने लगे। कैसे, कब हुआ ये? हाथ की मुट्ठी बनाकर गुस्से को कम करने की जदोजहद करने लगे। फॉक्सी उनके अंदाज पर हंसी थी। उन्होंने गुस्से से फॉक्सी को देखा और फिर मोबाइल कान से लगाए कहने लगे, तुमने अपनी तरफ से मुकम्मल काम करना है, सुना तुमने? जितने पैसे मांगोगे इतना तुम्हारे मुंह मुंह में भरूंगा, बस इस केस को खुलने मत देना। वो अपने लफ्ज़ अदा किए फ़ोन काटने लगे जब फॉक्सी ने उनके हाथ से फ़ोन झपटा और अपने कान से लगा लिया। ये बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं। आप इस केस को खुलवाने दें, आगे मैं हूँ। ये कहते ही फ़ोन काटा और मोबाइल पलंग पर फेंक दिया था। अब वो बराह रास्त चाकू वाला हाथ सीने पर बांधे बाप को देखे जा रही थी। अभी तो कोई मुझे कारोबार के तौर अतवार सिखा रहा था, हालांकि नजर आ रहा है कि किसे सीखने की ज़रूरत है। बॉस उसे घूरते सोफे पर बैठने लगे और इज़्तिराबी अंदाज में टांग झिलाने लगी। फॉक्सी उनकी देखा देखी पलंग पर बैठ गई थी और पूरी तरह से उनसे हमकलाम हुई। अब आप मुझे सच सच बताएं, असल कहानी क्या है? बॉस ने झलती टांग रोकी थी और उसे घूरने लगे। ये मेरा मामला है, इसमें टांग अड़ाने की मुदाखलत तर्क कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फॉक्सी ने आइब्रो झुकाई। मैं अगर टांग ना अड़ाऊं तो हो सकता है कि आप इस एसपी के हाथों मारे जाएं। बताएं, फिर मंजूर है। उसके हाथों मौत। बॉस कुछ पल ऐसे ही देखे गए, फिर बताने का फैसला किया। बाकी अगली किस्में जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।